very warm welcome in my YouTube channel. This is Suman Kumar, your favorite mentor and educator here that is going to take this class. So today is the fifth lecture of our backend series, Backend Crack. So let's start without wasting our time. So let's start. So today's topic is as per the context. In the last two lectures, we have studied the Node.js and the Express.js in the previous lectures. So in today's topic, we will study Postman. Postman, a very powerful tool that we use in backend in testing our backend code and APIs. So this Postman is our today's topic. So let's start without wasting our time. So let's first we will study little bit theory. This is the two-page theory, and then we will go to the code part. In code part, we will write the routes. We will write the index.js codes, and we will go and check on the Postman. We will check the routes of get, uh, post, put, delete, and all the methods. Okay, so let's start. So what is a Postman? As I have told, Postman is a user interface for the backend. मीन्स जब बैकएंड का कोड हम लोग लिखते हैं लाइक फ्रंट एंड का कोड अगर लिखते हैं और उसको अगर चेक करना है तो हम लोग के पास बटन्स होता है हम लोग के पास फॉर्म्स होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने कोड को चेक कर सकते हैं या फ्रंट एंड को चेक कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है बट बैकएंड के पास ऐसा कोई यूआई नहीं होता बैकएंड को कैसे चेक कर सकते हैं वो तो सिर्फ एक इनविजुअल कोड की तरह होता है जो कि एक सिग्नल का वेट करते रहता है सो दिस पोस्टमैन use as a signal generator. So use Postman is a user interface for the backend. When you build a front end, you have buttons and forms to test your code. When you build a backend, you have nothing. You just have individual code waiting for a signal. Okay, so Postman ये signal generator की तरह काम करता है. Postman is that signal generator. सिंपल सा मतलब है कि पोस्ट बैकएंड एक बैकएंड का कोड हम लोग लिख दिए बट किसी को उसका ट्रिगर करना पड़ेगा ताकि उसका यूआरएल्स वर्क करे उस राउट को हिट करे उस यूआरएल को हिट करे तो उसका कोड जो कंट्रोलर्स लिखा हुआ है वो रन करे सो पोस्टमैन वही काम करता है सो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग ब्राउजर क्यों नहीं यूज कर सकते ब्राउजर भी तो फ्रंट एंड की तरह काम कर सकता है बट ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं बट ब्राउजर हैज लिमिटेशन यूजिंग ब्राउजर वी कैन ओनली टेक द दिस गेट मेथड पोस्ट मेथड पुट मेथड डिलीट मेथड हम लोग ब्राउजर से हिट नहीं कर सकते सो postman and we can also not send the data while posting we cannot send the data through the browser okay so what is the definition of postman so postman is a software it is a software okay software tool very powerful tool okay that acts as a GUI graphic user interface for sending HTTP request to APIs okay it sends HTTP request for AP to APIs in the prerequisite class we have I have taught you what is API what is HTTP and all of this so it allows you to talk to a server without building a front end app first without building front end we can talk to the server how we will see in this lecture itself so why not just a browser so browser are limited when you type a URL in a browser you are only doing a get request from the browser you can only get a get request but you can't easily perform post put and delete but postman using a postman you can easily do it so postman job what postman ka job kya hai it gives you a drop down menu to choose any HTTP methods get post put delete and lead and lets you attach raw data to that request okay raw data में हम लोग mainly JSON फॉर्मेट का डेटा अटैच करते हैं so key vocabularies the big three the first one is collection second one is environment third one is the body let's write this so first one is collection collection okay second one is environment and the third one is what is one third one the body part yeah the body part okay एक एक करके हम लोग तीनों को देखने वाले हैं और फिर पूरा पोस्टमैन समझ में आ जाएगा दिस इज द बॉडी ओके
yeah, body part. So let's start with our collection part. इससे पहले मैं ये बताना चाहूँ, अगर आपके लैपटॉप में पोस्टमैन डाउनलोड नहीं है तो यू कैन, जैसे इस पीसी में भी डाउनलोड नहीं था, तो यू कैन सिंपली search postman download and get this first URL, download postman, and as per your device you can select, like for mine it's Windows X64, so I will select here and डाउनलोड हो जाएगा. सो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे डाउनलोड किया है 53 मिनट्स ago, सो डाउनलोड हो जाएगा. उसके बाद यू कैन बेसिकली रन इट एंड इट विल गेट इंस्टॉल बाय साइनिंग इन. ओके, सो मैंने इंस्टॉल कर लिया है और साइन इन कर लिया. So let's get back to here. The three vocabularies जो अभी हम लोग बात कर रहे थे. The first one is the collection. What is the collection? So this is the Postman UI. अब इसमें हम लोग का तीन पार्ट है, समझते हैं. सबसे पहला पार्ट है दिस पार्ट हियर, कलेक्शन पार्ट. ओके, जो हमने अभी देखा, दिस वन कलेक्शन पार्ट. सेकंड पार्ट इज हियर इन्वायरमेंट पार्ट. लाइक हियर नो इन्वायरमेंट इज सेलेक्टेड, सो वी कैन क्रिएट इन्वायरमेंट. थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और क्या क्या करते हैं. एंड द थर्ड पार्ट इज बॉडी पार्ट, विच इज दिस वन, बॉडी पार्ट, जो मेनली हम लोग किस मेथड किस मेथड के थ्रू हम लोग हिट करना चाहते हैं यूआरएल, एंड व्हाट इज द यूआरएल, एंड बॉडी में क्या डेटा रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. लाइक बॉडी इन रॉ डेटा जेसॉन, अगर हम लोग कुछ भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट में डेटा लिख सकते हैं. ओके, एंड हेडर भेजना चाहते हैं या कुछ, ये सब हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब भी भेज करके देखेंगे और चेक करेंगे. अभी इस लेक्चर में हम लोग बॉडी तक लिमिटेड रहेंगे. बॉडी में भी रॉ डेटा भेजेंगे जेसॉन फॉर्मेट में. ओके, सो या सो कलेक्शन क्या होता है? Collection is this one. It is only a like playlist, like collections of the request. So collection is like the playlist. It is simply a folder of request. Okay. Next part is environment. What is the environment? The costume change. What is the problem? You have a local server like you, अगर आपने फ्रंट एंड बनाया होगा तो आप उसको रन करते हैं तो आपके लोकल डिवाइस पे रन होता है. लाइक उसका यूआरएल रहता है लोकल होस्ट 3000 और 4000 जिस पोर्ट पे आप रन कर रहे हैं उसको. सो उसको लोकल सर्वर बोला जाता है. एंड अ लाइव सर्वर, अगर आप उसको डिप्लॉय कर देंगे तो it gets a live server. So you do not want to keep deleting and rewriting the URL in your request. So इसका क्या solution है? We use a variable like base URL, and इस base URL को हम लोग accordingly change कर देते हैं. Okay, so ये भी हम लोग देखेंगे अभी base URL create करके in environment section. So if you switch from local host to production environment, only change the environment, not the code. Okay, so ये इसका advantage होता है कि पूरा कोड को चेंज नहीं करना पड़ता है, only we need to change the environment. And the third part is the body part for put and post request. We almost always use raw data, okay, in JSON format. जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, JSON is strict. He must have double quotes. JSON एक strict pattern, strict rules follow करता है. Like अगर आप जावा कोड किए होंगे तो सेमीकोलन होना बहुत जरूरी है, वही पाइथन में होना जरूरी नहीं है. So JSON में भी होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? डबल कोट्स. So अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली की और वैल्यू लिख करके सेंड कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा, इसको डबल कोट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वो भी हम लोग करके देखेंगे अभी. ओके, सो व्हाट इज द समरी? इट सेव्स टाइम बाय सेविंग द रिक्वेस्ट. सेविंग द रिक्वेस्ट मीन्स व्हाट? इन द कलेक्शन अगर हम लोग रिक्वेस्ट एक बार बना लिए तो वापस पोस्टमैन बैक भी कर देंगे तो वापस खोलेंगे तो कलेक्शन सब सेव रहेगा. So it saves time by saving the request. And the second part is it is an API client. It copies a browser but gives you full control. Okay. So ये छोटा सा टॉपिक था पोस्टमैन का. अब हम लोग पोस्टमैन इंटरफेस को सीखते हैं using a small project. So let's start. So we will make lecture 5. सबसे पहले हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे. सर्वर क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक अगर आपके डिवाइस में अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले नोड इंस्टॉल कर ले, तब ये सब काम करेगा. ये मुझे फर्स्ट क्लास में ही बताना चाहिए था बट मुझे याद नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ. सो नोड आप एक गैप हाइफन वी लिख करके देखेंगे तो उसका वर्जन बताएगा. अगर यहाँ वर्जन नहीं बता रहे हैं, लिख रहा है नोड नॉट रिकोगनाइज, मतलब आपके डिवाइस में नोड इंस्टॉल नहीं है. सो आप नोड इंस्टॉल करके आए, उसके बाद बाकी सब कोड रन करेगा.
फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था नोड क्या होता है, मीन्स थर्ड क्लास में लेक्चर 3 में। सो नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, सो जरूरी है इसे कोड रन करने के लिए। अब इसमें मैं नोड इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, आप जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो हम लोग पहले एक सर्वर क्रिएट करेंगे, ओके। सो जैसे हमने लास्ट क्लास में सर्वर क्रिएट किया था, एज इट इज सेम तरीके से सर्वर क्रिएट करेंगे, ओके। सो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। ये आप देखेंगे तो ये कोड ES6 मॉड्यूल का है, ओके, कॉमन JS का नहीं है। जैसे प्रीवियसली जो यूज होता था उसमें आप देखेंगे बहुत जगह लिखा हुआ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर एक्सप्रेस, ऐसा देखेंगे लिखा हुआ। सो हम ये वाले यूज नहीं कर रहे हैं, ये अब पहले यूज होता था, अब हम लोग लेटेस्ट वाले यूज कर रहे हैं, दिस वन, ओके। सो यूज द सिंटैक्स दिस वन। सो ओके, सो हमारा कोड हमारे सामने है। सो ये हमारा पूरा index.js का कोड है, and also we have written package.json code. In this, we have used type module so that we can use the ES6 module in our code. In our code, okay. So let's start. So we have imported Express, and then we have created an instance of the Express. उसके बाद हमने middleware यूज किया है express.json नाम का। अब ये middleware क्या करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। Yeah. So we can say in Express, app dot use express.json is a built-in middleware function that act as a translator for your server. अगर हम लोग इस middleware के बिना हम लोग अगर फ्रंट एंड से बैक एंड को डेटा भेजेंगे, लाइक हम लोग इस कोर्स में पोस्टमैन पढ़ेंगे, सो पोस्टमैन से अगर हम लोग डेटा भेजेंगे सर्वर को बिना यूज किए दिस मिडलवेयर, सो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी विल बी एम्प्टी। विदाउट दिस लाइन क्या होगा, अगर इसके बिना हम लोग भेजेंगे तो नोट डॉट जेएस रिसीव्स द डेटा एज अ रॉ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। लाइक हम पोस्टमैन से जेसॉन फॉर्मेट में भेजेंगे रॉ रॉ डॉट डेटा, सो ये रॉ डेटा रिसीव करेगा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइन होगा। बट अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, लेट्स सी। तो सबसे बड़ा फायदा तो सबसे पहला ये है कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करता है, ओके, sorry, intercept करता है, the middleware intercepts the incoming request. It checks if the content type header is application slash json is or not, okay, ये बहुत जरूरी हो ना, okay। So it translates the json string into javascript notation, and also it attaches that object to request.body so you can access it easily in your routes. ये अभी हम लोग देखेंगे request.body से कैसे हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं easily using this middleware. अगर ये middleware हम लोग यूज नहीं करते तो हमारा request.body वो undefined आएगा। ये भी हम लोग करके दिखाएंगे, एक बार कमेंट आउट करके भी देखेंगे, ठीक है। So what it does when a client sends data to your server in a post, put or patch request, that data is usually sent as a raw string in JSON format. So ये middleware उस इनकमिंग डेटा को इंटरसेप्ट करता है और रिक्वेस्टेड बॉडी में अटैच करता है। So this is the work of this middleware express.json, very important. नाउ वी हैव क्रिएटेड अ मॉक डेटाबेस। मॉक डेटाबेस क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में मोंगोडीबी पढ़ेंगे, डेटाबेस एसक्यूएल नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ेंगे, तो उसमें और ज़्यादा डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। अभी डेटाबेस का कम्प्लेक्सिटी रिमूव हो जाए इसलिए नॉर्मली हम लोग एक मॉक डेटाबेस बनाया है जिसमें एक एरे यूज़ किया है, ओके। सो मॉक डेटाबेस का ऐसे डेफिनेशन क्या होता है, इट इज सिंपली अ लोकल वेरिएबल दैट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी प्लेस होल्डर फॉर अ रियल डेटाबेस। रियल डेटाबेस की जगह एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, टेम्परेरी प्लेस होल्डर की तरह, ओके। सो we can operate, we can perform operations without the complexity of setting up a database server yet, okay। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस भी सेट करना अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सीखेंगे और बहुत से चीज़ सीखेंगे। सो इसलिए हम लोग यहाँ मॉक डेटाबेस यूज़ किए हैं क्योंकि अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द राउट्स। सो राउट्स पार्ट में हम लोग सबसे पहले गेट मेथड का लिखे हैं जिसमें हम लोग सारा राउट्स सारे यूज़र को गेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गेटिंग बाई आईडी, मीन्स इंडिविजुअल यूजर को गेट कर रहे हैं यूजिंग आईडी। नेक्स्ट वी आर यूजिंग द पोस्ट मेथड इन विच वी, जिसमें हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, मतलब
पुश कर रहे हैं नए यूजर को अपने डेटाबेस में, अपने मॉक डेटाबेस में। ओके, सो पोस्ट मेथड क्या करता है, पुश करता है, अ, एक नया यूजर क्रिएट करता है, लाइक एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एंड डिलीट मेथड क्या करता है, डिलीट करता है। सो हम लोग यहाँ एक यूनिक आईडी से डिलीट करेंगे, सो पर्टिकुलर यूजर डिलीट हो जाएगा। सो हम लोग थोड़ा सा इस कोड के अंदर चलते हैं, लाइक ऐप डॉट गेट। सो यहाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में पूरा यूजर, तो सारे यूजर्स रिटर्न हो जाएंगे। एंड यूजिंग दिस आईडी, अगर हम लोग इसका राउट्स एपीआई स्लैश यूजर स्लैश उसके बाद आईडी पास करेंगे, सो उस आईडी का जो यूजर है वो रिटर्न होगा। सो इसमें हम लोग सबसे पहला लाइन देख सकते हैं, हम लोग आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आई डी। अब ये रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स क्या होता है और ये पार्स इंट क्यों यूज़ किया है? सो पार्स इंट तो इसलिए यूज़ किए हैं ताकि जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। रिक्वेस्ट में पूरा स्ट्रिंग में रहता है, जो भी वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग में रहता है। सो हम लोग को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ा है। क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली इक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। सो हम लोग यूजर डेटाबेस में, मॉक डेटाबेस में ढूंढ रहे हैं कि जिसका भी यू डॉट आई डी, जिसका भी आईडी इस यूआरएल का आईडी से मैच करेगा उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, नहीं मैच करेगा, इफ नॉट यूजर, सो यूजर नॉट फाउंड। सो सिंपल। सो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स क्या करता है, लेट्स सी। यस, सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर आप आगे और पढ़ेंगे, सो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स is an object containing properties mapped to the name route parameter. Simply, when you define a route like API slash user slash colon ID, so colon tells express whatever value comes after user is a variable name ID. Okay, so slash के बाद आप कुछ भी डालेंगे वो ID में डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। लाइक अगर ये URL होता है स्लैश API स्लैश यूजर स्लैश टू, सो रिजल्ट्स क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ID 2। ओके, सो ये कॉलन का यूज किया जाता है और कॉलन के साथ जो भी वैल्यू आता है वो पैरम्स में जाता है और वो पैरम्स क्या, पैरामीटर को बोला जाता है। ओके, सो इसका हम लोग ये देख रहे हैं तो साथ साथ ये तीनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं जो कि बहुत कॉमन होता है और बहुत जरूरी भी होता है। सबसे पहला आता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये यही तीनों का यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट से डेटा फेच करते हैं। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या करता है, ये बॉडी टाइप का है, हिडन इनसाइड द रिक्वेस्ट। ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, एंड सो ये बॉडी से हम लोग अगर डेटा फेच करना चाहते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करते हैं। अगर हम लोग कुछ आईडी फेच करना चाहते हैं, लाइक हमने यहाँ देखा कुछ कॉलन, कॉलन के बाद कुछ लिखा हुआ है, जैसे टू आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, उसको फेच करना चाहते हैं उसका पैरामीटर से, सो वी विल यूज रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स। ओके, एंड क्वेरी इज फॉर filtering part, sorting part, to filter, sort और search through a list, we use query. Okay, so query के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सो यूजर्स क्वेश्चन मार्क दिस कोर्स इक्वल टू बैकएंड, सो कोर्स इक्वल टू बैकएंड जिसका इसका रहेगा वो सब ढूंढ कर इसका रिटर्न कर देगा। सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से हम लोग वो फैच कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही मेजर केस में यूज करेंगे, बट सम केसेस में जहाँ जरूरत पड़ेगा पैरेंट्स यूज करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा क्वेरी यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू VS कोड। सो हमने देखा रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स का क्या यूज है, क्या क्या यूज है। ओके, एंड पार्स इंट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स में आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा। So, हम लोग को चाहिए इंटीजर में, इसलिए सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, हम लोग को चाहिए इंटीजर में, सो हम लोग पार्स इंट यूज करेंगे। ओके, एंड पोस्ट मेथड में भी हम लोग सी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमने यूज किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उसका बॉडी फेच कर लिया, और अगर उस बॉडी का नेम नहीं रहेगा, कोर्स कोर्स वैल्यू नहीं रहेगा, सो हम लोग रिटर्न कर देंगे नेम एंड कोर्स आर रिक्वायर्ड। अगर रहेगा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू यूजर नाम का और उसको फिर उस डेटाबेस में, मॉक डेटाबेस में पुश कर देंगे। ओके, यूजर डॉट पुश, दिस इज द array method, so we have used here, and then we will return user created successfully. And similarly for delete we use this logic, like यहाँ पे भी हम लोग request dot parents यूज किए हैं क्योंकि यहाँ id fetch करना है, so id fetch किया है। नेक्स्ट we have find that index
पर्टिकुलर इंडेक्स निकाली है इस आईडी से और उस इंडेक्स को स्प्लाइस मेथड में पास कर दिया। स्प्लाइस मेथड एक एरे का स्पेशल मेथड है जिसमें डिलीट करने का काम आता है, लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है और टोटल कितना डिलीट करना है ये हम लोग पास करते हैं। सो पर्टिकुलर इंडेक्स से एक एलिमेंट डिलीट करना है, सो हमने 1 पास किया है। सो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली एंड ये हम हमारे सर्वर चल रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो हमारा कोड पार्ट हो गया। अब लेट्स हम अपना सर्वर हम अपना चलाते हैं सर्वर and then see on let's see on the postman. So npm start. So हमारा सर्वर चल गया है 4000 पोर्ट पे। नाउ लेट्स चेक फर्स्ट कि काम कर रहा है या नहीं। सो अगर हम लोग स्लैश एपीआई यूजर्स करेंगे सो काम कर रहा है, ओके या काम कर रहा है। सो हमारा ये दोनों रिटर्न हो के आ गया है, दोनों आईडी 1 एंड 2 सुमन सौरभ दोनों यहाँ शो कर रहे हैं, ओके। सो हमारा राउट्स काम कर रहा है। सो पोस्टमैन पे चलते हैं। सो पोस्टमैन में हमने देखा था एक कलेक्शन पार्ट है, ये बॉडी, यहाँ से बॉडी डेटा भेजा जाता है, यहाँ मेथड पार्ट है और ये इन्वायरमेंट पार्ट है। सो इन्वायरमेंट पार्ट हम सबसे पहले बनाना सीखते हैं, लाइक एक न्यू इन्वायरमेंट बनाते हैं। यस, सो न्यू इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम लोग, इसका नाम रहेगा डेमो 2, ओके। डेमो 2 नो लेक्चर 5 नाम रहेगा। अब इसमें वेरिएबल्स और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ को बार बार नहीं यूज़ करना चाहे तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि डायरेक्टली यूज़ कर सके। सो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कॉपी पेस्ट, या ओके। सो हमने बेस यूआरएल में http 4000 जिस पोर्ट पे हम लोग का चल रहा है स्लैश एपीआई को लिख दिया। अब सबसे पहले कलेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहला गेट मेथड। सो सबसे पहले हम लोग गेट मेथड रन करेंगे और बेस यूआरएल जो कि एपीआई 4000 एपीआई और स्लैश यूजर्स। अब इसमें हम लोग का जितना भी है वो मिलना चाहिए, सेंड करके देखते हैं। सेंड किए एंड 200 मीन सक्सेस स्टेटस बताता है एंड हमारा सारा आईडी मिल रहा है। लेट्स सी बाय चेंजिंग इट, ओके। सो हम अगर हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ सेव किए और यहाँ सर्वर को टर्मिनेट किया। सर्वर को टर्मिनेट कंट्रोल+C से किया जाता है और वापस से स्टार्ट किए एंड वापस से यहाँ पर सेंड किए एंड सी हमारा बस एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। सो अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, सो एक ही रिटर्न हो रहा है, ओके। सो इसको वापस से सही कर देते हैं क्योंकि बाद में चेक करना होगा। वापस से सर्वर स्टॉप किए, वापस से स्टार्ट किए एंड वापस से सेंड करेंगे। सो 2 आ रहा है, ओके। सो गेट ऑल यूजर्स हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेट बाई आईडी। सो स्लैश कॉलन आईडी अगर ये लिखेंगे तो इसके ऊपर जब हॉवर करेंगे तो हमारा वैल्यू डालने के लिए आएगा। सो 1 2 हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स सी 2 डालते हैं और सेंड करते हैं। सो आईडी 2 में नेम सौरभ, ओके। सो ऐसे ही हम लोग पर्टिकुलर आईडी के साथ गेट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ कॉलन आईडी की जगह वैल्यू भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ हमने 1 लिखा सो 1 वाला आ जाएगा। सी 1 लिखे तो 1 वाला आ गया। ये सब गेट मेथड के कारण हो रहा है, ओके। गेट मेथड एंड नेक्स्ट वी कैन सी द पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या होता है? एक नया डेटा क्रिएट करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सो पोस्ट मेथड में हम लोग को कुछ नया क्रिएट करना है, सो वैल्यू भेजना पड़ेगा। सो बॉडी में आएंगे, रॉ में आएंगे एंड जेसॉन फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना नेम लिखेंगे, ओके। सो नेम हमने लिखा दिया एंड पहले बस नेम भेज कर देखते हैं, ओके, क्या होता है। सो नेम सेंड किए। ओह, वी हैव नॉट चेंज दिस, सो वी विल चेंज दिस एंड सी। हमने बस नेम भेजा तो एरर आया, नेम एंड कोड्स आर रिक्वायर्ड। हमने अपने कोड में लिखा था पोस्ट वाले में कि अगर नेम नहीं होगा या कोर्स का वैल्यू नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा, सो ये रिटर्न कर देना, नेम एंड कोर्स आर रिक्वायर्ड। सो अभी हम लोग दोनों भेज करके देखेंगे। सो कोर्स इज बैकएंड, ओके, नो इशू। So let's send. Yeah, so we have successfully created 201 is a success code
अगर कुछ नया क्रिएट होता है तो 201 कोड होता है। ओके, सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, एंड लेट्स सी यूजर क्रिएट हुआ है, ये हमारा सही में हुआ है या नहीं, डेटा बेस में, मॉक डेटा बेस में ऐड हुआ है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? फॉर ऑल यूजर्स गेट करके, सो ऑल यूजर्स गेट पे हिट किए एंड सी ID3 रिया बैकएंड हो गया, हमारा मॉक डेटाबेस में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ID3 कैसे आ गया। सो हमारे कोड में देख सकते हैं ID इक्वल टू यूजर्स डॉट लेंथ प्लस वन, जितना भी उसका लेंथ है प्लस वन ऑटोमेटिक कर देगा, ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक आ गया एंड यहाँ अब देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स डिलीट समथिंग। डिलीट में भी हम लोग बेस URL यूजर एंड स्लैश पर्टिकुलर ID डालेंगे। डिलीट का राउट देख लेते हैं, या API यूजर पर्टिकुलर ID चाहिए किसको डिलीट करना है। सो अगर हम लोग को ID2 को डिलीट करना होगा, सो हम लोग सेंड करेंगे एंड से दिस वन ID2 का वैल्यू आया है एंड ओ सॉरी गेट 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 हो गया डिलीट, या यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो लेट्स चेक कि सही में डिलीट हुआ है या नहीं। यू कैन सी ID1 ID3, सो सही में वो डिलीट हो गया। सो हमने गेट ऑल यूजर्स का राउट चेक कर लिया, गेट यूजर बाय ID चेक कर लिया, वी हैव पोस्टेड अ न्यू यूजर, वी हैव डिलीटेड अ यूजर बाय हिज ID एंड इसी के साथ हमारा सारा राउट्स चेक हो गया। ओके, सो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ऑल राउट्स वी हैव चेक्ड। सो पोस्टमैन वापस से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, दिस इज द कलेक्शन पार्ट जहाँ पे हमारा ये सब सेव रहेगा। अभी हमने बैक भी कर दिया तो वापस खोलेंगे तो ये सब सेव रहेगा। ओके, एंड दिस इज द इन्वायरमेंट फाइल। इन्वायरमेंट का क्या फायदा होता है, अभी आपने देखा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखा इन्वायरमेंट का फाइल ये होता है, लाइक बेस URL मैंने लिख दिया। अब ये भी जो लोकल होस्ट है बार बार मुझे सब में नहीं लिखना पड़ेगा, और फिर अगर हम लोग लाइव जाएंगे तो इस लोकल होस्ट को चेंज करके जो भी नया लिंक आएगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सो हम लोग को राउट्स का URL भी, राउट्स भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज द बॉडी पार्ट जिसमें हम लोग यहाँ पोस्ट में देखा था, बॉडी में जा करके रॉ में जा करके जेसॉन फॉर्मेट में जा करके हम लोग डेटा भेजते हैं। सो एक्सप्रेस डॉट जेसॉन का यूज देख लिया, इस मिडलवेयर का क्या यूज है एंड मॉक डेटाबेस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटाबेस सीखेंगे, SQL नो SQL सीखेंगे और MongoDB के बारे में सीखेंगे। सो और भी इसको यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो और भी क्लियर होगा आपको। लाइक हम लोग ऑथराइजेशन में भी JW2 टोकन, बेयरर टोकन, ये सब के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ है पोस्टमैन का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड you all liked the video. Please subscribe and share with your friends जो भी बैकएंड करना चाहते हैं using Munstack. So okay, that's it for today. Bye bye. Bye. See you in the next video. Bye. Is going to take this class. So today is the fifth lecture of our backend series.